Hello students, today I Kinnari Dave from Ambi Patel School for Standard 11, Unit 5, Part 12 is going to explain you about the last part of this today's unit, and that is the surface tension and viscosity of the liquid. We are studying the properties of liquid, and these are the main properties of liquid. So today Standard 11 Part 12 of Unit 5 States of Matter. Student, now first of all, surface tension and viscosity are not a unknown word for you. It is already known by you. You know that surface tension means what? As you know, if you drop the nails, the nails just go inside the water, but the steamer is float on the water, or we can say that it swims on the water. The same way, wooden log is float on the water. But if we'll think about the human body, then the dead body of the human or any of the dead body floats on the surface of the water. But when anything drops or anything thrown from the higher height or from the height, it just went inside and then it comes out and then it floats. So what is this all, student? There is some force which yes, correct, that is a buoyance force. So there is a buoyance force which is present in the liquid, and that push the body to the upper side. So now we are going to study what is that stretch the surface, what is there to stretch the surface of the liquid, and due to that what effects are seen and how it occurs, that we are going to study by the surface tension. As you know, the molecule, suppose we'll think this is the glass which is filled with water, and here this water molecule is surrounded by water molecule, correct? This water molecule is surrounded by the water molecule. So whatever the attraction force and repulsion force occurs, that occurs vice versa, simultaneously. Everything will be in a proper way. So that's why if you think about the net force of that particle or the liquid which is present inside the glass or inside, that is having net force 0. Why net force 0? Because it is surrounded by the same type of molecule. Suppose the same way if you think about this molecule, then this molecule is also surrounded by the same molecule. So here the force of attraction and force of repulsion both is this way, both is equal in opposite direction. So that's why if we'll say here, the net force of this molecule, inside molecule, net force is 0, is equal to 0. Now we'll think about the student who is sitting exactly on the center of the bench. 3 students are sitting in a bench, and the student who is sitting on the middle, he or she is surrounded by the 2 other students who are sitting besides him to left and right. Then the same way, if we think about the lines when you are standing for the assembly or the prayer, at that time the center student or the student who is standing in the 2nd, 3rd, 4th, 5th and 7th position, he or she is surrounded by the first, then here the another class row, that is 2nd position student, here another class row, that is 2nd position student, and behind him his own class,
third position student is there. So if you think this is the center molecule, so here this center molecule, उसके आगे कोई एक molecule है, इसके right side में, उसके back side में, उसके left side में, हर एक बाजू से वो एक center of attraction है, और उसकी वजह से if he wants to do any mischiefs, then he is वेरी कंफर्टेबली ही कैन डू, करेक्ट, वो सब आप करते ही हो क्लास के अंदर. बट नाउ विल थिंक अबाउट द स्टूडेंट हु इज स्टैंडिंग और सिटिंग ऑन द फर्स्ट रो. Now what will happen? Suppose if he is not in a standing attentive position, or he is just doing any kind of misbehavior during the assembly time, then immediately he or she may be caught red-handed by the teacher. Why it happens? Because only the back side force is there, front side nothing is there. So here what happens? पीछे से धक्का आएगा तो वो सीधा आगे जाके गिरेगा, पर पीछे वाले स्टूडेंट जो है वो पीछे से धक्का आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, तो उसका नेट फोर्स है वो इक्वल हो जाएगा. बट फर्स्ट स्टूडेंट के लिए वो पॉसिबल नहीं रहता है. सो दैट विल बी हैपन ओवर हियर. नाउ एनी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल विच इज ओवर हियर, वो जो सरफेस के ऊपर है, एट द जो ऊपर सबसे लेयर में है, दैट आर सराउंडेड बाय ओनली द वाटर मॉलिक्यूल्स विच इज इनसाइड. उसके ऊपर कहीं पर भी उसके वाटर मॉलिक्यूल नहीं है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाटर मॉलिक्यूल को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो सिर्फ यहाँ से ही लगेगा. पर व्हाट अबाउट ऑफ हियर, ऊपर से उसके पास में कोई भी फोर्स अट्रैक्शन नहीं है, तो उसकी वजह से नीचे से धक्का लगेगा, ऊपर से जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, पर उसके वाटर मॉलिक्यूल का फोर्स नहीं होगा. सो हियर द नेट फोर्स इज नॉट जीरो, एंड ड्यू टू दैट हियर देयर इज अ वन stretching of the liquid is occur, and that is known as surface tension. So here I can just say that molecule of surface are only attracted from downwards. So this molecule which is there on the surface can be pulled down, वो नीचे आ सकता है, and the surface जो है वो एक ऐसी stretch spring की जैसी behave करेगी. So surface is behave as a stretched, so it behave as a stretched, and it is known as surface tension. क्लियर हो गया स्टूडेंट? व्हाट इज सरफेस टेंशन? एक मेम्ब्रेन जैसा, स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसा, एक डोरी जैसा वो बिहेवियर करता है, और उसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन. तो इट बिहेव एज अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, और ड्यू टू दैट ओनली द मॉलिक्यूल पुल्स इट डाउनवर्ड्स, बिकॉज हियर ओनली द डाउनवर्ड बॉटम के नीचे वो उसके मॉलिक्यूल रहते हैं, ऊपर जो है वो कोई सम अदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और उसी की वजह से उसका जो नेट फोर्स है वो यहाँ पर जीरो नहीं हो सकता है. एंड दैट इज द रीजन इफ एनीथिंग हैपेंस देन बॉडी फर्स्ट जस्ट गो डाउन. क्यों? क्योंकि यहाँ से आप अंदर डालते हो तो वो टेंशन जो है वो थोड़ा लूज हो जाता है, वो मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ा लूज हो जाती है, उसको अंदर जाने देता है, एंड देन दिस ऑल द फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल जस्ट पुल दैट टू द अपर साइड. नाउ हियर विल थिंक अबाउट द सरफेस टेंशन का काम क्या है. सो सरफेस टेंड्स टू acquire the smallest possible area. अगर हम इसके लिए बात करते हैं तो आपने जनरली पानी का ड्रॉपलेट्स जो है, ये सपोज मान लेते हैं कि दिस इज द टैप, ये हमारा नल है, नल में से
पानी की जो बूंद गिरती है वो इस तरह से गिरती है, आपने देखा है। और जनरली अगर आप ड्रॉ करते हो तो भी पानी की बूंद इसी तरह से हम ड्रॉ करते हैं। और यहाँ आके वो पानी की बूंद जो सरफेस पे, मतलब कि अगर वो फ्लोर पे आती है तो फ्लोर पे आके वो एक स्फीयर शेप में, स्फीयर फॉर्म में बैठ जाती है, ऐसा कह सकते हैं हम। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि सरफेस टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड अक्वायर द स्मॉलेस्ट एरिया। मतलब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ से ये टैप की सरफेस है, ये नल की सरफेस है, वहां से वो ड्रॉप आउट होना शुरू हुआ तो वो एरिया जो है यहाँ वो स्फीयर में ही, मतलब कि दिस अक्वायर द स्मॉलेस्ट एरिया, स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया। तो स्फीयर का एरिया सबसे स्मॉलेस्ट होता है। तो ये हम इसके थ्रू प्रूव कर सकते हैं कि सरफेस टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड अक्वायर द स्मॉलेस्ट सरफेस पॉसिबल सरफेस एरिया। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना वो छोटा से छोटा एरिया अक्वायर करने की कोशिश करता है। क्योंकि यहाँ पर ये जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन है वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन में से उसको कम्स आउट करना पड़ता है। एंड उसी तरह से अगर आप कोई स्ट्रॉ की मदद से ग्लास से पानी पीते हो और फिर आप देखते हो कि पानी, चलो ये भी एक ड्रॉ करके ही समझा देती हूँ। सपोज यार ये हमारे पास में कुछ 2 बीकर है और वो 2 बीकर के बीच में, मतलब इस तरह से, तो यहाँ अगर हम देखें तो एक इस तरह से कुछ आपके पास में ये जो है वो एक बीकर है, वो बीकर में यहाँ पर पूरा लिक्विड भरा हुआ है। नाउ व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स, अगर ये जो आपका जो ब्लो पाइप है, इसे अगर हम कंसीडर करते हैं ब्लो पाइप, जो मैंने अभी आपको स्ट्रॉ बताया था, तो वो ब्लो पाइप है, उसमें आप यहाँ पर जो है वो पानी अपने आप आएगा और यहाँ से आप उसको, ये अपनी जगह में थोड़ा सा राइज भी हो सकता है। या तो मैं ऐसा एग्जाम्पल करके समझाऊं आपको कि व्हेन वी यूज शक द ज्यूस और वाटर फ्रॉम द स्ट्रॉ, और आपने थोड़ा सा पी के रख दिया, या तो आपने स्ट्रॉ ग्लास में रखा है पर सक नहीं किया है, तो भी अगर आप नोटिस करोगे तो अपने आप थोड़ा सा लिक्विड जो है वो स्ट्रॉ में ऊपर आ गया होता है। एंड दैट इज डिपेंड्स ऑन द विस्कोसिटी, मतलब अगर बहुत गाढ़ा लिक्विड होगा तो बट नेचुरल वो इतना ऊपर तक राइज नहीं होगा। यस, बट थोड़ा सा लेमन जूस है या तो मिल्क है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ऐसा कुछ है तो वो ऊपर की ओर राइज हो जाता है। बट अगर थिक शेक है, मिल्क शेक है, तो वो स्ट्रॉ में इतना राइज नहीं होता है। तो ऐसा किस तरह से हो सकता है, दूसरा एक एग्जांपल देती हूँ उसके लिए स्टूडेंट। ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन द स्मॉलर क्लासेस, जो आप भगवान की दिया बनाते हो तो दिया में जो तेल होता है, ऑयल होता है, वो ऑयल ऊपर विक तक कैसे पहुंचता है। आप तो ऑयल जो है वो तो दिया के अंदर डालते हो, तो बाती जो है उसका जो टॉप ऊपर का लेयर है वहां से विक जिसको हम बोलते हैं, तो विक कैसे गीला होता है और उस तक कैसे वो सारा ऑयल पहुंचता है। आपका ऑयल जो है वो जब खत्म हो जाएगा बर्तन के अंदर, तभी जाके आपकी जो बाती है वो बंद होती है, बुझती है।
तो ये कैसे हो सकता है? तो दैट इज ऑल्सो वी कैन से दैट the stretch membrane or this surface tension tries to acquire the minimum position or minimum surface area. दूसरा एक एग्जाम्पल बताती हूँ उसी तरह से स्टूडेंट, एज यू आर supplying the water to the roots, not to the whole parts of the plant, but then also plant gets the sufficient amount of water through the roots. So these all are the examples of this, which we can say that the surface tension is the main characteristics of द लिक्विड. और सरफेस टेंशन के साथ में अगर हम टेम्परेचर को जोड़ते हैं तो एज द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीज. why it decrease? Because its kinetic energy, as you know, by increasing the temperature, kinetic energy of molecule increase, and the kinetic energy of molecule increase, the speed, randomness of the molecule, the movement of the molecule will be increased. So speed, or we can say that randomness of molecule increase. अब रेंडमनेस जब बढ़ जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ जाएगा, कहाँ कौन सी डायरेक्शन में वो डैशिंग होगा, वो हम कह नहीं सकते हैं. तो यहाँ हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन decrease, and as the force of attraction decrease, the surface tension decrease, which result into surface tension decrease. Means now you just understand that the temperature का हर एक जगह में उसका रोल होता है. It plays the role, important role in all the properties of even gaseous also. So by increasing the temperature, kinetic energy of the molecule increase, and due to that the movement or the speed of the molecule increase, and that's why the force of attraction will be decreased, and that's why the surface tension decrease. This is very important property of liquid. Now we are going to study the second important property of liquid, that is known as the viscosity. So the next property is viscosity. Student, as you all have seen the petrol, then water, oil, castor oil, ग्लिसरीन, ये सारे जो लिक्विड है वो सब आपने देखा हुआ है. सपोज इफ यू विल पुट द 1 drop of water on the surface, same way in the next tile you are going to drop the oil, in the next tile you are going to drop the castor oil, and in the next tile you are going to drop the wax, or we can say that glycerine. Now see after 5 minutes what happens, student. You can see that the water droplets which is present on the first tile वो थोड़ा सा अपनी जगह चेंज करेगा, वो फ्लो होगा. Then the oil will be also flow, but not as much as water. Castor oil, there is a very less chances of castor oil to flow. Then next, petrol, it spreads, but wax, it does not show any fluidity. It has the fluidity, but it does not show any fluidity as compared to water. So why this happen? As you know that all the substance, all the liquid materials which I named out are having some dense molecule जो है
इंटरनल मॉलिक्यूल की जो स्ट्रेंथ है उसकी वजह से उसकी गार्डनेस जो है वो डिफरेंट रहती है। पानी जो है वो एकदम से हल्का सा लगता है, कैस्टर ऑयल है वो थोड़ा गाढ़ा होता है। सो दैट इज नोन एज viscosity, means the flow of each molecule or flow of each liquid is depends on the internal molecular force, and that internal resistance जो है वो उसके फ्लो को पकड़ के रखता है या तो छोड़ देता है। इंटरनल रेजिस्टेंस, सो विस्कोसिटी इज इंटरनल रेजिस्टेंस जो फ्लो को स्टॉप करता है या तो फ्लो को अलाउ करता है, फ्लो को अलाउ करता है या तो स्टॉप करता है। अब ये हम किस तरह से कह सकते हैं, अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब कि मॉलिक्यूल जो है वो इंटरनली एक दूसरे को रेजिस्ट कर रहे हैं। रेजिस्ट करना मतलब क्या, जिससे हमने फ्रिक्शन पढ़ा हुआ था। तो फ्रिक्शन क्या करता है, स्पीड को रेजिस्ट करता है। एज यू नो कि अगर आप स्लिपरी सरफेस है या तो स्मूथ टाइल है तो उसके ऊपर आपका फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता है, उसकी वजह से स्कीड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट रफ सरफेस है तो रफ सरफेस में you have the proper grip and that's why there is a less chances for the skidding, और उसी को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो क्या करता है, अपोज करता है आपकी स्पीड को। तो दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रोड टू द टायर। सो हियर ऑल्सो दो मॉलिक्यूल है, वो दो मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल जो है वो इधर जाना चाहते हैं पर उसका जो इंटरनल मॉलिक्यूल है वो उसको मूवमेंट नहीं करने देगा। उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस फोर्स ज्यादा होगा, तो उसका फ्लो कम रहेगा और शो द लेस फ्लो। सो वी कैन से दैट इंटरमॉलिक्यूलर रेजिस्टेंस इज मोर, फ्लो it does not show the flow, or it is having the less flow than intermolecular resistance is more than flow is less, and we can say that that force is viscous, जिसे हम बोल सकते हैं इंटरमोलिकुलर रेजिस्टेंस फोर्स इंक्रीज हो जाने से वो विस्कस हो जाता है। फोर्स की वजह से ये जो लिक्विड है वो लिक्विड विस्कस लिक्विड हो जाता है, गाढ़ा लिक्विड हो जाता है, और गाढ़ा लिक्विड हो जाने की वजह से वो इजीली फ्लो नहीं कर सकता है स्टूडेंट। तो ये हो गया विस्कोसिटी। अब अगर इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि आपने जब अहमदाबाद वगैरह जाते हो तो कैनाल देखा हुआ है, कैनल के ऊपर जब आप बैठे हो पैर पानी में कहीं पर भी, या तो नदी सोच लो, तालाब सोच लो, कुछ भी सोच लो, जब आप पानी में पैर डाल के बैठे होते हो तो अंदर से पानी ऐसे फ्लो कर रहा है वो आप फील कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ईच लेयर ऑफ द वाटर और ईच लेयर ऑफ द लिक्विड possess the different fluidity, different force of friction और डिफरेंट दिस इंटरमोलिकुलर रेजिस्टेंस, वो कैसे होता है वो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपके पास में जो आपकी टैंक है या तो जो कैनाल है या नदी है उसमें सिर्फ 3 लेयर है, वो कंसिडर करो। एक लेयर जो सबसे बॉटम में होता है कि नीचे जो है वो सरफेस होती है, उसके ऊपर जो लेयर होता है वो, उसके बाद में एक लेयर जो है वो सबसे ऊपर का लेयर जिसको आप देख सकते हो, तो वो है आपका अपर लेयर। अब बॉटम लेयर और अपर लेयर के बीच में एग्जैक्टली एक लेयर हम सेंटर में है वो पोजेस करते हैं, बाकी सब लेयर है ही, बट वी आर कंसिडरिंग ओनली 3 लेयर टू अंडरस्टैंड
the different layer is having the different intermolecular resistance, वो समझने के लिए हम थोड़ा सा ये समझते हैं उसको कंसिडर करके। तो अगर आप जो है वो फ्लो, उसका वेलोसिटी ऑफ द वाटर जो है वो ज्यादा रहता है, फिर जैसे आप उससे नीचे जाते हो तो उसी के हिसाब से उसका वेलोसिटी जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और सबसे बॉटम में वो वेलोसिटी बिल्कुल नहीं होता है। पर यस, सेंटर पार्ट जो आपका है वो सेंटर पार्ट में वेलोसिटी या तो जो स्पीड ऑफ द वाटर है वो बहुत ज्यादा होता है, और उसी की वजह से जनरली हमने देखा है कि कोई पर्सन अगर पानी में स्लीप हो जाता है तो एकदम से फिर तुरंत ही उसको ढूंढने के लिए जाते हैं, तो भी वो पर्सन कहाँ चला गया होता है वो पता नहीं चलता है, और बाद में फाइनली उसकी डेड बॉडी कोई दूसरी जगह से मिलती है। ऐसा काफी बार आपने कोई न्यूज वगैरह में पढ़ा होगा कि अभी यहाँ पर ऐसे गिर गया और पता नहीं, फिर फायर ब्रिगेड आया, ये सब देखा तो उसका बॉडी मिलता नहीं है। तो ये उसका रीजन है। क्यों? क्योंकि अपर लेयर है वो स्टेडी होता है, उतनी मूवमेंट नहीं होती है ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। और यहाँ पर हम साथ में ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन को भी जोड़ सकते हैं। फिर बॉटम लेयर है उसको भी रेजिस्टेंस मिलता है। किसका रेजिस्टेंस मिलता है? तो बॉटम जो आपकी है उसका। पर मिडल लेयर जो है आपका, वो मिडल लेयर को आपको हर एक बाजू वही मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए वहां इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है, और वहां पानी का बहाव बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। और इसीलिए यहाँ से गिरा है तो वो एकदम से जैसे बीच के पार्ट में आता है तो पानी के फ्लो के साथ में वो एकदम आगे निकल जाता है। तो हम विस्कोसिटी के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स को हम लिक्विड के फ्रिक्शनल फोर्स को हम करते हैं सजेस्ट यहाँ पर 3 तरह से। मैंने जैसे बताया कि ये जो है वो हमारा कैनाल है, जो मैंने बोला वो कैनाल, उसकी बॉटम है। फिर यहाँ पर ये आपका फर्स्ट लेयर है जो बॉटम को टच करके चल रहा है, तो फर्स्ट लेयर। ये आपका टॉप लेयर है जो सबसे ऊपर है, तो ये आपका टॉप लेयर। और ये मैंने बोला आपका जो मिडल लेयर है, यहाँ सब जगह में बीच में सारे लेयर्स आए हुए ही है, पर हमें कैलकुलेशन जो करना है उसके लिए हम सिर्फ ये 3 लेयर को कंसिडर करेंगे। तो ये है आपका मिडल लेयर, मिडल लेयर। अब ये हर एक लेयर के बीच का जो एरिया है वो एरिया हम कंसिडर करते हैं उसको dx, और एरिया को हम डिनोट करेंगे एज अ ए। तो ये हुआ आपका डिस्टेंस, ये इसके बीच का सेम वे हम डिस्टेंस कंसिडर करेंगे dx। तो इसी तरह से अगर आप लेते हो तो ये सबसे नीचे वाला लेयर, उसकी वेलोसिटी आप करोगे v इज इक्वल टू, आपके पास में यहाँ वेलोसिटी जो है वो है 0, जो सबसे नीचे है उसकी। अगर उसके ऊपर का कोई एक लेयर आप लेते हो, जिसको सपोज किया है आपने सेकेंड लेयर, तो सेकेंड लेयर जो है ये इसका डिस्टेंस है यहाँ पर। फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर के बीच में जो है आपके पास में वो डिस्टेंस हुआ आपका। और एरिया मैंने जो आपको बताया, तो एरिया को हम सपोज करते हैं a सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो है वो है a सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबसे नीचे वाले का वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 थी, तो उसके ऊपर ये जो उसका डिस्टेंस है स्टूडेंट, वो डिस्टेंस को अगर हम dv कंसिडर करते हैं, तो फर्स्ट लेयर के बाद सेकेंड लेयर जो है उसके लिए इसकी वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी होगी v माइनस dv। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस है उसके ऊपर गया तो इसकी वेलोसिटी 0 है,
तो इसकी वेलोसिटी होगी v माइनस dv। अब अगर आप यहाँ सेंटर में आते हो तो सेंटर के लिए उसकी वेलोसिटी जो है वो एग्जैक्टली v रहेगी। मैंने बोला आपको कि सेंटर जो है वो आपका एग्जैक्टली फ्रिक्शन फोर्स को सपोज करता है, वो मैक्सिमम होता है, तो यहाँ वेलोसिटी v है। और अब इससे ऊपर जाते हो तो धीरे धीरे वो कम होती जाती है, तो यहाँ करते हैं v प्लस dv। तो ये हुई आपकी डिफरेंट वेलोसिटी फॉर द डिफरेंट लेयर। वेलोसिटी से फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ऑपोजिट फ्रिक्शन, और बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी, इंटरनल मॉलिक्यूलर रेजिस्टेंस जो है उसकी वजह से। तो अब यहाँ फोर्स मुझे काउंट करना है, तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया को। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और इसके बाद में dv, और ये है हमारा डिस्टेंस dx। सो फोर्स प्रोपोर्शनल टू a इंटू dv बाई dx। ये मैंने बताया आपको, डिस्टेंस दो लेयर के बीच का हमने लिया है dx। अब यहाँ पर हम कांस्टेंट अगर ईटा लेते हैं, ये कांस्टेंट को ईटा बोलेंगे, तो ईटा इंटू a इंटू dv बाई dx ये हमने कंसिडर किया। ईटा जो है वो विस्कोसिटी कांस्टेंट है होता है, और विस्कोसिटी कांस्टेंट है उसका जो ऐसा यूनिट है किसमें मापा जाता है, ऐसा यूनिट है, तो वो है हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, दैट इज द SI यूनिट ऑफ न्यूटन, क्योंकि सॉरी ईटा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में एरिया की बात हो रही है इसलिए मीटर स्क्वायर। और एरिया जो है वो किसके ऊपर डिपेंडिंग होता है, तो कॉन्टेक्ट सरफेस के ऊपर, तो इसीलिए हमने यहाँ पर उसके लिए ये लिखा है। अब अगर यहाँ भी हम टेम्परेचर को कंसिडर करते हैं तो विस्कोसिटी से टेम्परेचर का रिलेशन क्या है। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर सेम वे लाइक हियर, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर the kinetic energy increase, kinetic energy of the molecule increase, और kinetic energy of the molecule increase होने की वजह से जो फ्लो है, स्पीड जो है फ्लो की, वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। मॉलिक्यूल की फास्ट स्पीड की वजह से उसकी विस्कोसिटी है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को रेजिस्ट करने की ताकत उनकी कम हो जाती है। आप रेजिस्ट कब कर पाते हो, बहुत फास्ट व्हीकल होता है आपका, तो फास्ट व्हीकल को ब्रेक लगाने से इतना जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाते हो जितना स्लो व्हीकल को ब्रेक लगाने से कंट्रोल कर सकते हो। तो यही बात यहाँ पर है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूल की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और स्पीड इंक्रीज हो जाने की वजह से उसका जो रेजिस्टेंस पावर है, उसका इंटरमॉलिक्यूलर रेजिस्टेंस है, विस्कोसिटी है, वो कम हो जाती है। सो टेम्परेचर इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, so movement, or we can say that flow will be faster, flow fast, and viscosity increase. So this is the result of temperature on surface tension and viscosity. Student, this is our last topic of unit 5. Afterwards we are going to start the next chapter, and that is the S block element. Student, study this all the theoretical part and the numericals part or illustrations part. We are also going to learn by practicing. So thank you student, and yes, you have to do practice by writing it, क्योंकि लिखोगे नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। So written practice, thorough practice is must student. Okay, thank you so much.